Okay, so we are taking a very new topic from today. Actually, we are shifting ourselves from genomics towards proteomics part, and this this is a very again a very important topic that we have to cover in today's aspect. That is proteomics, and proteomics is a big subject to understand. So we'll try to learn one by one all the parts of the proteomics and I think it is one of the most important subject in bioinformatics that creates huge what we can say applications in terms of biomedical, in terms of production of the products, in terms of plant-based products and all. So we need to tap this subject in detail with respect to bioinformatics. So we'll take a tour of proteomics first. We'll learn one by one what are the concepts are there for the proteomics. We'll learn how protein behaves, what is actually a protein is, how that has been classified. Everything we'll try to cover one by one. Okay. So we'll start with the session with the term protein. Now, whenever I'm saying a protein, it's a complex molecule always. It's a complex molecule. Whenever I'm saying complex molecule, it terms that it's having a some sort of sets in them. Okay, whenever I'm saying complex, means they will have a sets, and those sets will function. Okay, those sets will function in together, and that's why it becomes complex. Okay, so whenever I'm saying complex, the term shows sets. So फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोटीन को देखूं तो प्रोटीन एक फ्लैट स्कीम जैसा है या बड़ा कॉम्प्लेक्स जैसा है आपने कॉम्प्लेक्स देखा होगा जहाँ पे नीचे में शॉप्स होते हैं देन फिर फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे फ्लैट्स होते हैं सेकंड थर्ड फ्लोर पे कुछ अलग सिस्टम्स होते हैं इस तरह से इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर and that's why protein is again one kind of a complex molecule. Now, as we all know that genes encodes our proteins, that we know. Okay. Now, protein is also available in the form of the peptides. So, there are two things that we need to understand whenever we are learning a protein. Protein may be available in the form of a protein, or it may be available in the form of the peptides. So, how it starts, as we all know, genes gives us mRNA, and that mRNA gives us the protein. This is a very general term that we know. We have also learned that there is an involvement of open reading frame. That open reading frame gives us the protein. This thing we know. To convert this open reading frame into protein, we always use the power of codons and codon usage. This everybody knows. Okay. This is a very general topic that we have learned up till now. Now we are shifting ourselves towards the real protein biology. So protein study protein study can be done in two ways. Okay, one is by direct protein search, and second is by indirect protein base. Okay, now this is very important. Direct protein search and indirect protein base. What does this mean? See, for example, if you have a cell and from that cell you are trying to isolate one particular protein and you have succeeded in isolating that protein and then you wanted to study on that for assay or some kind of a test, then it's a direct protein study. Okay, this is one of the examples. What is indirect protein study? In an indirect protein study, what you will do, you will isolate a gene, you will sequence that. Okay, and you after sequencing you will convert that sequence into CDS, that is coding sequence, and then from that you will get the protein sequence. Okay, but here you are not actually working on a protein. Okay, you are working on a gene, and from that gene you have ultimately reached to a protein sequence. Hence it's an indirect protein based study. Okay,
So these are very important points that we need to understand, that you can do proteins research by two ways. One is by directly by isolating a protein and then you can investigate, and second is by indirect way, where you will target the gene or mRNA, and from that you will get the CDS and then you get the protein sequence. Okay, so these are the two very important points that you need to understand. So first we'll start with a direct proteomics. This is my term actually. There is no direct word or a related word like that. So this is our terminology that will work with the direct proteomics. Now what is the direct proteomics? Question comes, how we can isolate protein. How we can isolate protein? From here the story starts. Okay. Now can anybody tell me how we are isolating a protein? How can we isolate a protein? अगर किसी सेल से मुझे किसी प्रोटीन को निकालना है तो जनरली हम कौन सी मेथड यूज करते हैं? कौन सी मेथड यूज करते हैं? सेल से अगर हमको प्रोटीन निकालना है तो हम कौन सी मेथड यूज करते हैं? By disrupting the cell. यस, सेल तो डिस्टर्ब होगा, राइट? डिस्टॉर्ट होने के बाद, टूटने के बाद क्या, कौन सी मेथड से आप उसको सेपरेट करेंगे? प्रेसिपिटेशन. ओके, प्रेसिपिटेशन बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल प्रेसिपिटेशन है। और कौन सी मेथड से? डायलिसिस. राइट, डायलिसिस करेक्ट है। और फिर क्रोमेटोग्राफी इज देयर, राइट? पढ़ा है ना? यस सर। ये सारी चीजें हमको पता रहनी चाहिए, इसलिए स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हम डायरेक्ट प्रोटियोमिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें हमको प्रोटीन को आइसोलेट करने की जरूरत है। तो पहले हमको पता रहना चाहिए कि किस किस मेथड से उसको आइसोलेट किया जाता है, क्योंकि बाइंडफॉर्मेटिस भी आएगा इसके अंदर, ठीक है? इसलिए सो क्रोमेटोग्राफी इज ऑल्सो देयर। देन यू मस्ट हैव लर्न पेज। कोई बता सकता है पेज का फुल फॉर्म? पॉलीएक्रिलामाइड. हाँ, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और एसडीएस पेज? सोडियम डोडेसाइल पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. वेरी गुड, सोडियम डोडेसाइड सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट। कोई मुझे ये बता सकता है ये कौन है? इसका नाम क्या है? 2D जेल। इसका फुल फॉर्म? ये भी हम प्रोटियोमिक्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहली बात, यस सर बेस्ड ऑन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. हाँ हाँ हाँ, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, राइट? यस सर, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग है ना, या फिर उसको 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं, राइट? ये सारी चीजें हमको पता है। किसी सेल से अगर हमको प्रोटीन को निकालना है तो सबसे पहले उसको सेल को डिसरप्ट करना है, प्रेसिपिटेशन या डायलिसिस से, या क्रोमेटोग्राफी से, पेज से, एसडीएस पेज से, 2D जेल से, या आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग से हम उसको क्या करेंगे? कॉन्सेंट्रेट, प्यूरिफाई, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है? ये सारी प्रोसेस क्या कर रही है? जितनी भी प्रोसेस हमने पढ़ी, ये क्या कर रही है? कॉन्सेंट्रेट कर पा रही है, उसको प्यूरिफाई और सेपरेट कर पा रही है। तो ये हमेशा याद रखिए कि कौन सी मेथोडोलॉजी किस चीज के लिए काम में आ रही है, ठीक है? तो जितने भी ये प्रोसेस हमने अभी तक देखी, पीपीटी, प्रेसिपिटेशन, डायलिसिस, क्रोमेटोग्राफी, एसडीएस पेज एंड 2D और आइसोइलेक्ट्रिक फॉर्म, ये सारी चीजें कॉन्सेंट्रेट, प्यूरिफाई और सेपरेट करती है प्रोटीन्स को, ठीक है? नाउ कोई मुझे बता सकता है हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोटीन? प्रोटीन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अगर मैंने आइसोलेट कर भी लिया तो मुझे मेरे सेल में से मुझे एक पर्टिकुलर प्रोटीन निकालना है जिसका नाम है लाइज। तो मैं लाइज को आइडेंटिफाई कैसे करूं? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट आर द टेक्निक्स? सर बाय वेस्टर्न ब्लॉटिंग। हाँ राइट, वेस्टर्न ब्लॉट कर सकते हैं, बिल्कुल सही है।
और कौन सा कर सकते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और एलाइजा इज ऑल्सो देयर। देन सीक्वेंसिंग भी कर सकते हैं ना हमने ये भी तो पढ़ा था। मॉलिटॉप भी पढ़ा था ना, सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, मॉलिटॉप कर सकते हैं। ये सारी चीजों से हम प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद में आएगा उसका फंक्शन, ठीक है। फंक्शन पता करने के लिए कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है। देखिए धीरे धीरे हम समझ रहे हैं चीजों को, ठीक है ना। सबसे पहले हमको देखना है कि हम दो टाइप के प्रोटियोमिक्स पढ़ सकते हैं, एक है डायरेक्ट प्रोटियोमिक्स और एक है इनडायरेक्ट प्रोटियोमिक्स। डायरेक्ट प्रोटियोमिक्स में आप प्रोटीन को लेके काम करेंगे, रिसर्च करेंगे। और इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट में हम प्रोटीन को डायरेक्टली आइसोलेट नहीं करते, उसको दूसरी तरीके से एनालिसिस में ला रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोटियोमिक्स बेस हम पहले देख रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सेल में से अलग अलग मेथड से उसको आइसोलेट कर रहे हैं ताकि वो प्यूरिफाई, कॉन्सेंट्रेट या सेपरेट हो जाए। फिर हमको उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास में ये सारी मेथड्स है, जैसे वेस्टर्न ब्लॉट है, एलाइजा है, सीक्वेंसिंग है, माल्डिटॉफ है, ठीक है। इसके साथ साथ में पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग भी होती है, दैट इज नोन एज पीएमएफ आल्सो, ओके। या फिर आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग भी होती है। ये सारी मेथड से हम क्या कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई होने के बाद में अगला काम जो है उसका फंक्शन पता करना है। तो किसी भी प्रोटीन को आपने आइसोलेट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसका अगला काम है फंक्शन पता करना। फंक्शन पता करने के लिए आप हमेशा क्या करते हैं, ऐसे, है ना, ऐसे करते हो ना, जैसे अमाइलेज की टेस्ट करते हो, है ना, करते हो ना स्टार्च के साथ में। कोई बैक्टीरिया अमाइलेज प्रोड्यूसिंग है या नहीं, तो स्टार्च उसमें पुट कर देते हैं। इस तरह से आप उसके असे कर सकते हो अलग अलग, और उस तरह से उसका फंक्शन पता करोगे। अगला काम जो प्रोटियोमिक्स में होता है वो होता है मेटाबॉलिक लिंकिंग। क्या करेंगे, मेटाबॉलिक लिंकिंग। तो मेटाबॉलिक लिंकिंग ये उसका अगला काम रहेगा, यानी प्रोटीन को उसके मेटाबॉलिज्म के साथ में लिंक करना है। देन नेक्स्ट वर्क जो होगा उसके साथ में वो होगा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, ठीक है। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन आप उसका कर सकते हो। ये सारी चीजें कंटिन्यूअस होते जाएगी, ठीक है। और ये आपको सारी सी चीजें इस प्रोटियोमिक्स में आपको उसको कवर करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोटियोमिक्स आपको समझ रहा है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है ना। अगर आपको कोई पूछे कि किस तरह से प्रोटीन को आइसोलेट किया जा सकता है, तो आप ये चीजें समझा सकते हो। किस तरह से इसको आइडेंटिफाई करना है, तो ये सारी चीजें, फंक्शन आप ऐसे अलग अलग होते हैं उसके। मेटाबॉलिक लिंकिंग में आपको जब मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ाऊंगा तब ये चीजें समझा दूंगा। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन इसका सेकंड पार्ट है, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं एग्जैक्टली क्या होता है proteomics. Start search by the study. So we'll start with this topic of protein. What is the protein and why they are so important to us? ठीक है। theoretical साथ साथ practical भी करते जाएंगे। पहले हमको समझ लेना है कि क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है आज इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट जो आज चीज हम पढ़ने वाले हैं वो है आज के डेट में, वो है प्रोटीन क्लासिफिकेशन, ठीक है। हम जो पढ़ने वाले वो है प्रोटीन क्लासिफिकेशन, यानी प्रोटीन को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। दैट व्हाट इज आवर टुडेज एम, ठीक है। अब आपने ये तो पढ़ा होगा, कोई बता सकता है ये क्या है। एंजाइम्स में हाँ, एंजाइम के नेमिंग्स है ना, ऑथलील, है ना। ऑथलीन, हाँ, ऑथलील, ऑक्सीडोरिडक्टेज। हाँ, ठीक है। जैसे ऑक्सीडेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलाइज, लाइज, आइसोमरेज, है ना, इस तरह से लाइगेज एंड ऑल ऐसे नाम दिए हुए इसके। तो प्रोटीन गेट्स क्लासिफाइड इनटू फैमिली। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्डिंग है, ठीक है। क्या है, प्रोटीन गेट्स क्लासिफाइड इनटू फैमिली, यानी इसका मतलब है एवरी प्रोटीन नीड्स टू बी गेट क्लासिफाइड, है ना।
यानी आपको हर प्रोटीन को क्या करना पड़ेगा, क्लासीफाई करना पड़ेगा इनटू पर्टिकुलर फैमिली। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि हर प्रोटीन को एक फैमिली में क्लासीफाई होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमको हर प्रोटीन को किसी पर्टिकुलर फैमिली में उसको क्लासीफाई करवाना पड़ेगा। नाउ फैमिली, whenever I am saying family means what? Family means what? Related proteins remaining together, ठीक है। यानी जितने भी फैमिली हम बोल रहे हैं वो सारे प्रोटीन्स रिलेटेड है एंड दैट्स व्हाई दे आर रिमेनिंग टुगेदर। तो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। आपके पास में बस है, ठीक है, आपके पास टायर है, आपके पास की है, आपके पास डीजल है, ऐसे कुछ वर्ड्स है, राइट। बस, टायर, की, डीजल, ठीक है। फिर आपके पास और एक वर्ड है साइकिल, टायर, की। फिर आपके पास और एक है कार, टायर, की। Then you also have a truck, tire, key, diesel, petrol, something like this, ठीक है। अब कोई एक अपना माइक ऑन कर ले, मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके बेसिस पे आपको आंसर समझेंगे इसके। किया है किसी ने ऑन? राहुल है क्या? राहुल? यस सर। ओके। सो अब यहाँ आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं, राइट। सो ये है फर्स्ट, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड सेक्शन है और यहाँ पे एक फोर्थ सेक्शन है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें इसको तो आपको क्या लगता है, मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, फैमिली related with all are of close type। मेरा ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, कि इनको अगर आप ध्यान से देखो तो ये जितने भी फैमिलीज है ये रिलेटेड है क्या? सबसे पहली बात, यस सर। यस, आपने बोला रिलेटेड है। फैमिली रिलेटेड विथ ऑल आर ऑफ क्लोज टाइप, सारे क्लोज है क्या एक दूसरे से? यस यस, है ना। उसमें यस, लगने वाली सारी चीजें सेम है, थोड़ी 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 क्लोज है, हाँ, लगने वाली चीजें सेम है। अब मैं और एक चीज डालता हूँ, अब मैं उसको बोलता हूं कि अब फैमिली रिलेटेड विथ ऑल आर ऑफ क्लोज टाइप। नो सर, नो, फिफ्थ वन इज डिफरेंट। हाँ, यस यस, आपने बोला कि फिफ्थ वन इज डिफरेंट, फिफ्थ वन इज डिफरेंट, यानी इसकी फैमिली क्या है? डिफरेंट है, यानी ये डाइवर्स्ड है, राइट। ये क्या है? यस डाइवर्स्ड है, बट स्टिल दे आर रिलेटेड, ठीक है। यानी 1 से लेके 4 विथ हाँ, 5 रिलेटेड है क्या? रिलेटेड नहीं है बट उनके फैमिली में वो आया है ऐसा। नहीं, रिलेटेड नहीं है ना, फैमिली में आया ही नहीं हो, मैं तो अलग बोल रहा हूँ ना, ये सारी 5 फैमिली हाँ, अलग है। पर मैं ही पूछ रहा हूँ, आपने बोला अलग है पर स्टिल फैमिली इज डाइवर्स, बट स्टिल दे आर रिलेटेड, है या नहीं है? नहीं है, नो, कंप्लीटली डिफरेंट है, यानी ये डिफरेंट। फैमिली डिफरेंट है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर, है ना, व्हाई दिस इज सो, है ना, व्हाई दिस इज सो, आपने उनको अलग क्यों किया पहले बताइए, फिर समझेगा आपको। क्योंकि वो न्यूट्रिशन में गाड़ी का क्या काम रहेगा हाँ, एप्पल जूस में क्या काम रहेगा भाई, गाड़ी का कोई काम ही नहीं है, उसमें। उसका फंक्शन ही टोटली अलग है, इसलिए इसको इसमें अलग अलग कैटेगरी में डालना चाहिए इसको, राइट।
यानी आप इसको Yes. सेग्रीगेट कर दोगे, भैया ये अलग है। अब आपने चारों को बोला कि कॉमन है, क्यों कॉमन है बोला? इसमें मैक्सिमम जो चीजें लग रही है वो सेम है, कौन सी है? इसलिए इसलिए टायर की, हाँ, डीजल, टायर की आपने ज्यादा फोकस किया होगा, बराबर है ना? क्योंकि सभी इसमें वो यूज हो रही है। हाँ, और टायर और की जो है, ये ऐसे दो फैक्टर है जो बहुत ज्यादा कॉमन है ना? यस, कॉमन है या सब में है? सब में ही है। हाँ, इसलिए कॉमन है, राइट? हाँ, ठीक है। फिर सम टाइम्स वाले कौन है? पेट्रोल, पेट्रोल तो एक ही बार साइकिल, आया है। पेट्रोल और साइकिल एक ही बार आई। हाँ, तो और है, और एक देखो, और एक ऐसा है जो समटाइम्स आ रहा है, डीजल है, राइट, डीजल। जो 2 टाइम्स आए हैं। हाँ, डीजल है, समझ रहा है? तो ये जो पॉइंट्स है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि ये इनको सबको जोड़ने वाले जो शब्द है वो कौन से? इन सबको एक साथ जोड़ने वाले टायर शब्द एंड कौन से? की। समझा ना आपको? हाँ, टायर एंड की है। की तो ये है पैटर्न। क्या है? पैटर्न। पैटर्न इज कॉमन, बराबर है ना? यस, पैटर्न इज कॉमन। टायर एंड की आपने हर जगह वो पैटर्न देखा, बाकी हर हाँ, चीज वेरिएबल है। बस से साइकिल मैच नहीं कर रही, साइकिल से कार मैच नहीं कर रही, कार से ट्रक मैच नहीं कर रहा है, बराबर है? यस, पर फिर भी आप बोल रहे हो कि वो रिलेटेड है। क्यों बोला आपने ऐसा? क्योंकि सब में कॉमन है टायर एंड की। ठीक। और एक चीज है, ये तो हो गया सीक्वेंस मैच। क्या हो गया ये? सीक्वेंस। सीक्वेंस मैच है ना? यस, तुमने टायर से टायर मैच किया, टायर से टायर मैच किया, की से की मैच किया, तो ये सीक्वेंस मैच है। बट ये सीक्वेंस के साथ साथ फंक्शन मैच भी है क्या? कोई मुझे बता सकता है? हाँ, यस सर। साइकिल का छोड़ के। हाँ, सीक्वेंस मैच मैच के साथ में फंक्शन मैच भी कर रहा है। ये चारों चीज क्या फंक्शन कर रही है? ट्रांसपोर्टेशन। ये समझा क्या आपको? ट्रांसपोर्टेशन, यानी एक मैकेनिकल। फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, यानी एक फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं लोग, है ना? अब देखो इसमें और एक मैं ट्विस्ट डाल देता हूँ। हम्म, हाँ, अब बताइए, इसमें तो कौन से दो वर्ड्स कॉमन है? हेलो, कौन से वर्ड कॉमन है? सर टायर एंड की। हाँ, टायर एंड की, है ना? सब में कॉमन है। पर अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि फंक्शन कॉमन है क्या इनका? नो सर। क्यों? नो सर। अरे अभी तो आपने बोला कि टायर और की आने से तो वो ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है अभी? बट 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 सर अभी ये फैक्ट्री से रिलेट कर रहा है अभी, मतलब सेलिंग कंपनी है। हाँ, समझा ना आपको? मजेदार है ना? यस सर। यस सर। वर्ड वही है, पैटर्न वही है, दोनों में टायर एंड की कॉमन है। पर आप बोलते हो कि फिफ्थ का जो फंक्शन है ना वो अलग है। ठीक है, पहले से चौथे का फंक्शन कॉमन है ना, यस सर। और फिफ्थ यस का सर। फंक्शन डिफरेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। यानी ऐसा जरूरी नहीं होता कि ये अगर आ गया या फिर ये की कॉमन आ गया तो उसका हमेशा फंक्शन यही रहेगा कि ट्रांसपोर्टेशन, राइट? यानी आपने क्या बोला था पहले? टायर एंड की इज इक्वल्स टू क्या? ट्रांसपोर्टेशन। बराबर है ना? टायर एंड की इज इक्वल्स टू ट्रांसपोर्टेशन। पर ये सिर्फ कौन से कैटेगरी को अप्लीकेबल रहेगा? व्हीकल्स। समझा क्या आपको? समझा क्या आपको? पॉइंट समझ रहा है क्या? हाँ हाँ सर। सर। हाँ।
यानी आपको ये पैटर्न काम के तो जरूर है, बिल्कुल के पैटर्न काम के हैं, और ये हमेशा अगर ट्रांसपोर्टेशन से मैटर करते हैं तो ये व्हीकल के साथ रिलेट हो गए, ठीक है। पर इन पैटर्न्स का डिपेंडेंसी अदर फैक्टर पे है कि नहीं, ये मुझे बताइए। डिपेंडेंट ऑन अदर फैक्टर्स और नॉट फॉर फंक्शन? हाँ हाँ बताइए। Yes, sir, they are dependent. यस दे आर डिपेंडेंट, है ना, क्योंकि देखो टायर फैक्ट्री, टायर और की कार के ऊपर भी डिपेंड कर रही, ट्रक के ऊपर भी डिपेंड कर रही, इसीलिए हम उसको बोल रहे कि ये ट्रांसपोर्टेशन से इन्वॉल्व हो रहे। जैसे ही टायर और की फैक्ट्री के साथ में सेल और ओनर के साथ रिलेट हो गई, तो मैं बोल रहा हूँ ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से रिलेटेड हो रहा है, मार्केटिंग से रिलेटेड हो रहा है। यानी अगर मैं इसको एक प्रोटीन मान के चलता हूं, तो प्रोटीन के अंदर में क्या होंगे, क्या होंगे? Patterns. यस, और combination of patterns Patterns. will decide what? Their function. Very good, Functions. very good. Yes, combination of patterns will decide function. समझा? और हमको अब क्या समझना जरूरी होगा? So we need to find the pattern, pattern type, है ना, या फिर पैटर्न की स्टाइल पता करनी पड़ेगी, and that will be remain in the form of the combination, ठीक है। और ये ही रहेगा उसका एक्चुअल फंक्शन। इससे हमको और एक चीज पता चली, that every amino acid is not important for the function, right? हर एक अमीनो एसिड फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है? नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो होगा आपके पैटर्न वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो, ठीक है। अब एग्जैक्टली पैटर्न क्या है थोड़ा समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे है ना, देखिए TYRE, T के बाद Y आया, Y के बाद R आया, R के बाद E आया, K के बाद E आया, फिर Y आया। टायर का एक पैटर्न है, की का एक पैटर्न है, क्लियर? तो उसके पीछे एक हिडन इंफॉर्मेशन है एक्चुअली। आपने जब टायर बोलते हैं तो उसका एक फंक्शन है टू रोल, है ना, राइट? की का एक फंक्शन है टू ओपन एंड क्लोज, ये उसके पीछे के फंक्शंस है, राइट? और उसके बेसिस पे आपने उसकी पैटर्न की एक वैल्यू रखी हुई है। ये आपको पॉइंट समझ गया। अब इसको हम थोड़ा प्रोटीन्स के फॉर्म में समझते हैं कि कैसे वो चीजें आ रही है, ठीक है। समझा आपको ये पॉइंट? अब यहाँ से देखते तो आपको समझ में आएगा। सो व्हाट इज दैट? यू हैव टू लर्न अ प्रोटीन क्लासिफिकेशन। हम प्रोटीन का क्लासिफिकेशन देखने की कोशिश करें, जहाँ पे हमने कैसे दो चीजों को क्लासिफाई किया, वैसे यहाँ पे भी हम क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है प्रोटीन्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स and they are responsible for number of biological processes in the cell, ठीक है। बहुत सारे प्रोटीन्स है और बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है। दे कंसिस्ट ऑफ मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स डिटरमाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स इन अ जीन, ये हमको पता है। नाउ डिपेंडिंग ऑन द अमीनो एसिड सीक्वेंस and their interaction with the environment, protein folds them in a three-dimensional structure. This we also know, and which allows them to interact with the other proteins and molecules. This we also know. ये आपको दिख रहा है ना? So यहाँ से हमारा मेन काम शुरू हो रहा है। Proteins that have diverged from a common ancestral gene are known as homologous, and proteins with a similar sequences are assumed to be homologous and usually have a similar structure and function. So जो प्रोटीन का सेम मैच होगा उनको हम क्या बोलेंगे? होमोलॉगस। तो इन पांच में से कितने लोग होमोलॉगस है? 1 to 4.
1 to 4, 5 और 5 है या नहीं है? सर 5 भी हो सकता है। हाँ, मैंने बोला ना सीक्वेंस के बेसिस पे बिल्कुल है, पर फंक्शन के बेसिस पे नहीं है। डिफरेंट है, क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन अलग हो गया। समझ रहे? तो यहाँ पे यस हमारे सर। को सूडो मिल रहा है, वो यानी गलत मिल रहा है, पर है वो रिलेटेड कहीं ना कहीं, है ना? है या नहीं है रिलेटेड? यस सर। हाँ, अगर देखो ना, आप अगर बस चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, कार चला रहे हो, ट्रक चला रहे हो, जब तक टायर की फैक्ट्री टायर नहीं बनेगी आप ये चला नहीं सकते। समझा क्या आपको? हाँ सर। Yes, sir. आप सब ले लिए, पर जब तक कार कार के लिए की नहीं बनाएगा की फैक्ट्री, तो आप गाड़ी चला नहीं सकते, क्योंकि आपकी गाड़ी चुरा लेगा कोई भी, है ना? जब तक कोई सेल नहीं करेगा आपको ये सारा चीजें, तब तक आप उसको खरीद नहीं सकते हैं, है ना? और आप तब तक कभी ओनर नहीं बन सकते। यानी ये डिस्टेंटली क्या है? रिलेटेड। ये डिस्टेंटली रिलेटेड। हम नहीं बोल सकते कि ये रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, ये डिस्टेंटली रिलेटेड है, ठीक है ना? पर हाँ, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं एप्पल वाले से, तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा? डिफरेंट है, अनरिलेटेड हो जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पे भी उन्होंने समझाई है। देखिए क्या बोला, प्रोटीन्स दैट हैव डाइवर्ज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रल जीन आर नोन एज होमोलॉगस। यस, और सिमिलर सीक्वेंसेस होंगे तो वो होमोलॉगस होंगे। चलिए, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हम प्रोटीन्स को क्लासिफाई क्यों कर रहे हैं, ठीक है? तो हमने यहाँ समझ लेना है कि प्रोटीन को क्लासिफाई करने की जरूरत क्या है, ठीक है? ये समझने के लिए पहले आप बायोलॉजी समझनी पड़ेगी हमको। अब सेल एग्जैक्टली क्या करता है? सेल जो है वो मेटाबोलोम सिस्टम है। क्या है? इट्स अ मेटाबोलोम सिस्टम। मेटाबोलोम यानी जहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलते रहती है, और हर एक मेटाबॉलिक पाथवे में प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, दैट वी नो, ठीक है ना? हर एक मेटाबॉलिक पाथवे में प्रोटीन्स इन्वॉल्व है। हर एक प्रोटीन का एक पर्टिकुलर फंक्शन है, ठीक है? जैसे हमको पता है लाइज है, ठीक है, देन एटीपीएज है, इस तरह से अलग अलग प्रोटीन्स है। हर एक प्रोटीन का अलग फंक्शन है, इसलिए उसको क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है कि ये एग्जैक्टली कौन से कैटेगरी में आएगा। तो उसको क्लासिफाई करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसका नाम है क्लास आर्किटेक्चर टोपोलॉजी और होमोलॉजी। ये उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे है एक्चुअली, बट ये भी एक वन ऑफ द सिस्टम है, ठीक है? इन 4 सिस्टम्स के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया गया। अगर उसका स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो ये एक वन ऑफ द सिस्टम है प्रोटीन को क्लासिफाई करने की। क्लास आर्किटेक्चर टोपोलॉजी और होमोलॉजी, इसको ब्रॉड टर्म है कैथ भी कहा जाता है, ठीक है? कैथ सिस्टम। व्हाट इज द फंक्शनलिटी ऑफ इट? इसके बेसिस पे आप बड़ी आसानी से उसकी एक्टिविटी डिटरमाइन कर सकते हैं, और वो एग्जैक्टली क्या काम करेगा ये पता कर पाएंगे, ठीक है? सो यहां लिखा है व्हाई टू क्लासिफाई प्रोटीन्स, ये हम समझ लेते हैं। प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स। सबसे इंपॉर्टेंट, यानी प्रोटीन को हम ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन से दो बेसिस पे? देखिए, अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस और अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी। हमेशा याद रखिए, प्रोटीन को क्लासिफाई करने के दो तरीके हैं, एक है सीक्वेंस बेस और एक है स्ट्रक्चरल बेस। ये आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, अभी भूलना नहीं आपको जिंदगी भर। These groups often contains well characterized proteins. जिन प्रोटीन को आपको क्लासिफाई करना है वो सबसे अच्छे तरीके से आपको पता रहनी चाहिए, उनकी इंफॉर्मेशन आपको बहुत डिटेल पता रहनी चाहिए, ठीक है? तभी आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पार्शियल प्रोटीन इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई नहीं कर सकते। सो thus a novel protein is identified। कभी कभी क्या होता है ना, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हम आइसोलेट करते हैं,
ठीक है ना। जैसे ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन्स आपने पढ़ा होगा, ऐसा प्रोटीन ढूंढ के निकाला जो फ्लोरस करता है ना, चमकता है, तो ये नोवेल प्रोटीन्स है। तो ऐसे प्रोटीन्स का हमको क्या करना है, इट्स फंक्शनल प्रॉपर्टीज कैन बी प्रपोज्ड बेस्ड ऑन द ग्रुप टू विच इट इज प्रेडिक्टेड टू बिलोंग। ठीक है, हम उसको क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे कि किससे वो क्लासिफाई हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज, आपको एक हिंट देता हूं, आप मुझे उसका आउटपुट बताइए कि शायद किससे मैच करता होगा। ठीक है, रिस्ट है, हाथ का रिस्ट है, ठीक है, और उस पे एक मेटल की बॉडी का कोटिंग हम रखते हैं या कवर करते हैं, और वो हमको कुछ समय बताता है। तो वो कौन सी चीज है? वॉच। वॉच। आपने फटाफट बता दिया, वॉच है ना। यानी एक रिस्ट है, एक स्टील का कवरिंग है, ऐसा कुछ है, और वो टाइम बताता है, तो फट से बोल दिया वॉच है ना। फिर और एक चीज, आपके हाथ में एक ऐसी चीज है जो आप रोज अपने हाथ में रखते हो और वो समय भी बता सकती है। फोन। समझा आपको? दोनों रिलेटेड है पर दोनों अलग है, दोनों यूनिक है। मोबाइल को हम कभी ये नहीं बोलते कि ये घड़ी है, और वो घड़ी की तरह भी काम कर सकती है ना। यानी दे आर डिफरेंट बट दे आर रिलेटेड। हाँ है ना? Yes, sir. यस, तो दे आर डिफरेंट बट दे आर रिलेटेड, एंड दैट्स व्हाई किसी नोवल प्रोटीन को किसी पर्टिकुलर फैमिली में हम आसानी से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मुझे ये बताइए, मोबाइल यानी घड़ी है या नहीं है सर। है। तो घड़ी भी मोबाइल हो सकती है क्या? नो सर। सब स्मार्ट वॉचेस है ना। हाँ, समझा ना आपको? समझा ना आपने? आपने क्या किया, आपने उसको मॉड्यूलेट किया, आपने एक ऐसा प्रोटीन बनाया जो घड़ी को मोबाइल में कन्वर्ट कर दिया आपने उसको। समझा ना आपने? आपने उसको जेनेटिकली इंजीनियर किया। तो आपने जेनेटिकली इंजीनियर किया तो नेचर भी तो कर सकता है ना। यस सर। यस समझ रहे सर। हैं? मोबाइल के अंदर घड़ी डाल दिया और घड़ी के अंदर मोबाइल डाल दिया, यानी कुछ कुछ डोमेन चेंज किए ना उसने। समझा आपको? उसके कुछ पार्ट जो थे वो चेंज कर दिया उसने, पैटर्न कुछ चेंज कर दिया, कुछ कॉमन रह गए, कुछ चेंज हो गए, रिजल्टेंट उसके फंक्शन सेम हो गए या डिफरेंट हो गए। सो प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि प्रोटीन को क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग सिस्टम अवेलेबल है। सबसे पहली बात है कि प्रोटीन को क्लासिफाई किया जा सकता है बेस्ड अपॉन देयर फैमिलीज। ठीक है, हम प्रोटीन को फैमिली में क्लासिफाई करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको समझाया ना। कौन से बेस पे कर सकते हैं? क्लास, आर्किटेक्चर, टोपोलॉजी और होमोलॉजी, ये 4 पैटर्न लेके हम प्रोटीन को उसकी एक फैमिली में क्लासिफाई कर सकते हैं। देन द डोमेन्स दे कंटेन, समझाता हूँ डोमेन्स क्या है, और है सीक्वेंस फीचर्स दे पोजेस। तो ये 3 टाइप्स के बेसिस पे आप प्रोटीन को क्लासिफाई कर सकते हैं। व्हाट आर प्रोटीन फैमिलीज? ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोटीन का फैमिली क्या होता है, हाउ दे आर बीन क्लासिफाइड। अ प्रोटीन फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, फैमिली कभी भी एक इंसान से बनती है क्या? बनती है क्या? नो सर। नहीं, उसमें तो रिलेटेड लोग होते हैं। ठीक है ना, विच शेयर अ कॉमन इवोल्यूशनरी ओरिजिन। जैसे आपके चाचा होते हैं, आपकी चाची होती है ना, आपके मामा होते हैं, आपकी मामी होती है। हम उनको चाचा चाची मामा मामी क्यों बोलते हैं? क्योंकि दे शेयर अ वेरी कॉमन इवोल्यूशनरी ओरिजिन, है ना। आपकी मम्मी के भाई होंगे तो हम मामा बोल रहे हैं, आपके पापा के भाई होंगे तो हम चाचा बोल रहे हैं। तो ये दे शेयर अ वेरी कॉमन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यहाँ पे भी वैसी है। हम प्रोटीन्स को तभी एक जगह रखेंगे, एक फैमिली में रखेंगे, जब वो कहीं ना कहीं इवोल्यूशनरी रिलेटेड हो। ठीक है, एंड दे शुड रिफ्लेक्ट देयर रिलेटेड फंक्शन एंड द सिमिलैरिटी इन अ सीक्वेंस और अ स्ट्रक्चर। तो ये रिलेटेड है, कोई प्रोटीन एक फैमिली में क्लासिफाई हो रहा है, ये कैसे पता कर सकते हैं? बेस्ड ऑन द फंक्शन which can be deduced by sequence
और बाय स्ट्रक्चर। आपको ये दो लेवल पे उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपका प्रोटीन इसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। देन प्रोटीन में भी हायरार्की होती है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, अलग 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 अलग। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज सिर्फ समझ लीजिए। प्रोटीन फैमिलीज दिखती उतनी आसान नहीं है, उसमें भी कुछ सिस्टम है। देखिए, प्रोटीन फैमिलीज आर ऑफन अरेंज्ड इनटू हायरार्कीज, यानी एक के नीचे को अरेंज हो जाती है विथ प्रोटीन्स that share a common ancestors subdivided into smaller, more closely related groups। तो हमने कुछ पढ़ा था पिछले बार स्टडी में, अल्डोलेज ए जीन था हमारा, याद है? होमोसैपियन का किससे सबसे ज्यादा क्लोज था? हमने पढ़ा था तो गोरिल्ला। गोरिल्ला से था कि गोरिल्ला, फिर फॉलोड बाय चिंपांजी, आई थिंक मंकी था, मैं भूल गया। सर मंकी से monkey सबसे था। ज्यादा क्लोज था। हाँ, मंकी से सबसे ज्यादा क्लोज था ना। देन डोंकी। देन डोंकी, फिर कौन था? फिर बॉस टॉरस था, बॉस टॉरस। और चिंपांजी था जहां तक, है ना। बॉस टॉरस फिर भी हमने ये बोला था कि ये सारे कौन है? रिलेटेड। रिलेटेड है। तो देखिए वो वही चीज बोल रहा है यहाँ पे भी, देखो क्या बोल रहा है। प्रोटीन फैमिलीज भी उसी तरह क्लासीफाई होगी, आर अरेंज इन हायरार्की with proteins that share a common ancestor and then subdivided into smaller, more closely related groups. So the term super family, देखो हम अभी तक के फैमिली ही वर्ड ले रहे हैं ना, पर अब एक वर्ड आ गया, क्या नाम है? सुपर फैमिली। द टर्म सुपर फैमिली, what it do, it describes the large group of distantly related proteins, large group of distantly related species है, तो फैमिली का ही पार्ट, पर वो डिस्टेंटली रिलेटेड प्रोटीन्स का पार्ट है। एंड देन सब फैमिली डिस्क्राइबिंग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड प्रोटीन। समझा क्या आपको? सुपर फैमिली, लार्ज ग्रुप ऑफ डिस्टेंटली रिलेटेड प्रोटीन, डिस्टेंटली है पर रिलेटेड है। ये 1 से 4, जब 5वें से कंपेयर कर रहे हैं तो ये कौन सा हो जाएगा? डिस्टेंटली रिलेटेड। डिस्टेंटली रिलेटेड, करेक्ट। समझा क्या आपको? और सब फैमिली यानी कौन? क्लोजली रिलेटेड। क्लोजली रिलेटेड, यानी 1 to 4। 1 to 4। आपको समझ रहा है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। सो सुपर फैमिली वो फैमिली रहेगी जहां पे आप डिस्टेंटली प्रोटीन्स, रिलेटेड प्रोटीन्स को कंपेयर कर रहे हैं। आप बोलोगे सर डिस्टेंटली यानी क्या और क्लोजली यानी क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो पहले ये समझ लेते हैं इसको, ठीक है। ये समझने के लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा जीन एक्सचेंज। क्या समझना पड़ेगा? जीन एक्सचेंज या डीएनए शेयरिंग, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है ना, जब इवोल्यूशन हो रहा है, whenever evolution is occurring, ठीक है, a cell, जिसके पास भी एक सेल है, ठीक है, that cell is having their own gene sets। हर एक के पास में उसका एक जीन सेट है जो उसके जीनोम में बैठा हुआ है, ठीक है। Now what happens that cell has the tendency to accept DNA, ठीक है। सेल की एक टेंडेंसी है कि वो क्या करता है, वो अपने को डीएनए एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है, और दैट डीएनए इज ऑफ फॉरेन टाइप, ठीक है। क्या टाइप का? फॉरेन टाइप का। फॉरेन टाइप मीन्स
इट मे बी फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। सो जब किसी सेल के पास में, किसी क्लोज में एक आधा डीएनए आ जाता है, ठीक है, एंड दैट डीएनए इज हैविंग द एबिलिटी टू कोड एज अ जीन, और जिसके वजह से एक प्रोटीन मिल सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, इफ बाय सम रीजन योर सेल इज नाउ हैज बिकम पॉजिटिव फॉर दैट डीएनए, तो अगर उसने पूरा का पूरा डीएनए उसके बॉडी के अंदर ले लिया, तो दो टाइप का पॉजिटिव फीचर आपको दिखता है, ठीक है, दो टाइप के पॉजिटिव फीचर आपको दिखते हैं। कौन से हैं? एक होता है ट्रांजिएंट पॉजिटिव और एक होता है परमानेंट पॉजिटिव, ठीक है। एक ट्रांजिएंट पॉजिटिव और एक परमानेंट पॉजिटिव। इसका मतलब समझा देता हूं। जब सेल के अंदर में आपका डीएनए चला गया, तो आपका सेल के अंदर जो जीनोम है, अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करता हूं, तो उसके पास में एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर कौन है? जीनोम। अब आपको जो फॉरेन का जो डीएनए है, वो साइटोप्लाज्म सेलुलर मेम्ब्रेन पार करके कहां पहुंचा है? कहां पहुंचा है? कहां रीच हुआ है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। यानी उसने कौन सी बाउंड्री पार की? देखो, पहले एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, यानी बाहर था, सेल के बाहर, फिर उसने सेल मेम्ब्रेन पार किया और फिर पहुंच गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। यानी पहले एक्स्ट्रा सेलुलर से साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पार किया, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और आपका जो जीनोम है वो न्यूक्लियस में पड़ा हुआ है ना, इसके अंदर जीनोम पड़ा हुआ है। अभी तक के जो डीएनए है वो यहां तक पहुंचा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, और उसको पार करना है और कहां तक पहुंचना है? यहां तक, जीनोम तक। ये जो फेज है, यहां पे वो डीएनए ट्रांजिएंट मोड पे, समझ रहे हैं क्या आपको सबको? कुछ क्लियर हो रहा है? ट्रांजिएंट मोड पे है, यानी वो यहाँ पॉसिबल है कि एक्सप्रेस हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए? एक्सप्रेस हो जाए। एक्सप्रेस होके आपको प्रोटीन भी दे सकता है, बट ये प्रोटीन जो रहेगा क्या रहेगा? ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट यानी थोड़े समय तक के देगा। अगर ये सेल मर गई तो ये प्रोटीन भी मर जाएगा और ये अपना F1 नहीं दे पाएगा, यानी नेक्स्ट जनरेशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो जीनोम का पार्ट नहीं बना। पर अगर आपका डीएनए प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार करके, न्यूक्लियस पार करके जीनोम तक पहुंचा, और जीनोम के अंदर क्या हो गया? इंसर्ट, तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये क्या हो जाएगा? परमानेंट। परमानेंट। वेरी गुड, परमानेंट हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। अब परमानेंट जब होता है ना, कोई भी इस तरह का एक्सप्रेशन दिखाता है जहां पे परमानेंट वो हो गया, तो वहां पे डार्विन विल कम इनटू द पिक्चर, ठीक है। डार्विन ने क्या बोला? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। हाँ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक चेंज हुआ है ना, जेनेटिक चेंज हो गया उसके अंदर। जेनेटिक चेंज जब हो रहा है, तो जहां वो इंसर्ट हुआ, जिस जगह वो इंसर्ट हुआ, मान के चलते वहां कोई जीन था। क्या था? अभी ये वो है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी, प्रोटीन फैमिली, ये वो चीज पढ़ रहे हैं। देखिए, आपके जीनोम में एक जीन था, और उसी के साथ में एक बाहर से आया हुआ डीएनए इंसर्ट हो गया, राइट, है ना। तो ये कैसे हो गया? आपका ओरिजिनल जीन है, ओरिजिनल जीन है, जिसके पास में 4 ऐसे फैक्टर है जो एक प्रोटीन बनाते हैं, जिसका नाम है 1, 2, 3 और 4। ऐसे 4 फैक्टर है, मान के चलते हैं, ठीक है, और ये टोटल मिला के आपका ओरिजिनल जीन है। अब आपके पास में एक फॉरेन डीएनए आ गया, फॉरेन डीएनए, जिसके पास में ऐसे 2 फैक्टर है, जिसका नाम है 7 और 8।
अब क्या होगा, मान के चलिए कि ये 7 और 8 वाला डीएनए जो है इसके बीच में जाके फिट हो गया। समझ रहा है क्या सबको? सबको समझ रहा है ना? Yes, sir. तो अब आपका जो ओरिजिनल जीन था जो 1 2 3 4 दे रहा था, वो आपको प्रोटीन भी तो 1 2 3 4 ही दे रहा था ना, राइट? और अब Yes, sir. वो जो जीन है वो तो म्यूटेट हो गया, राइट? म्यूटेट हो गया। अब जब म्यूटेट हो गया है तो ओरिजिनल जो 1 2 3 4 वाला जो फंक्शन था वो क्या हो गया है? क्या हो गया बताइए? चेंज म्यूटेड हो गया। म्यूटेट हो गया या लॉस हो गया? लॉस ही हो जाएगा ना, हाँ या ना? हाँ सर। जीनी म्यूटेट हो गया ना, वो ब्रेक हो गया ना पूरा, तो उसका फंक्शन जो है 1 2 3 4 का पूरा ही लॉस हो गया। पर मुझे ये बताइए कि सही में लॉस हुआ है कि नहीं हुआ? लॉस हैज हैपेंड और नॉट? सर लॉस नहीं हुआ होगा, चेंज उसका फंक्शन चेंज हुआ होगा। हाँ, लॉस नहीं हुआ, उसका फंक्शन चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। उसने पूरी एक्टिविटी लूज किया ऐसा बोल नहीं सकते, पर हाँ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसलिए कौन पिक्चर में आएगा? डार्विन। अगर ये म्यूटेशन, वो बोलता है, देखो ऐसा बोलते हैं ना वो, अगर म्यूटेशन स्टेबल है एंड जिसके अंदर म्यूटेशन हो गया वो सरवाइव कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी F1 जनरेशन दे। क्या दे? F1 जनरेशन यानी नेक्स्ट जनरेशन। तो उसका जो प्रोजेनी होगा उसके अंदर ये जो जीन होगा उसका सीक्वेंस क्या रहेगा? जीन का सीक्वेंस क्या रहेगा बताइए? क्या सीक्वेंस रहेगा? अरे बताइए ना कौन सा रहेगा? उसका प्रोजेनी में क्या रहेगा अगर वो स्टेबल है, सरवाइव कर चुका है? सर 1 2 3 1 2 4 7 1 2 7 8, 7 8 3 4 हाँ 1 2 7 8 3 4 7 8 3 4 एंड और कौन सा रहेगा? और कौन सा रहेगा? 1 2 3 4 वेरी गुड। समझ रहे हैं ना? मान के चलो ये होमोसैपियन है, तो उसके पास में एक जीन के लिए दो सेट्स है ना, क्रोमोसोम 1 की दो कॉपीज है। Yes, sir. समझ रहा है क्या सबको? समझ रहा है कि नहीं? मान के यस सर। समझ रहा है ना? दो क्रोमोसोम नंबर के एलिलिक वेरिएंट्स है ना हमारे पास में, तो एक क्रोमोसोम का एक जीन म्यूटेट हुआ पर दूसरे क्रोमोसोम का वही जीन म्यूटेट हुआ है क्या? No, sir. नहीं। समझ रहे नो हैं ना? सर। क्योंकि हमको मालूम है ना हमारे क्रोमोसोम पे किसी एक जीन के लिए कितनी कॉपीज है? 2 copies. दो कॉपीज है। उसमें से एक क्या हो गई Mutate. और दूसरी क्या है? प्योर। प्योर है ना? तो सर्वाइवल अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, मजेदार है। आप एक जीन सेट के ऊपर में चल रहे हो, बराबर है? जो ये है, जो ओरिजिनल है आपका, और ये म्यूटेट हो चुका है, बराबर है ना? Yes, sir. ये तो म्यूटेट हो गया। म्यूटेट होने के बाद में फिर भी वो एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है? म्यूटेट होने के बाद भी वो एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है? एक्सप्रेस हो रहा है सर। हाँ, हो रहा है। एक्सप्रेस तो होगा, वो एक्सप्रेस होगा पर क्या कर नहीं पाएगा? फंक्शन। फंक्शन नहीं कर पाएगा जैसा ये कर पा रहा है। ये थोड़ा समझने लायक है, बड़ा मजेदार है ना? फंक्शन तो कर नहीं पा रहा है, वो एक्सप्रेस हो रहा है, बट वो स्टिल इट शोज एक्सप्रेशन, है ना? तो धीरे 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 ये जो प्रोटीन है
जिससे इस जीन से जो प्रोटीन बना वो किस में जाएगा, सिलेक्शन में। ठीक है, किस में जाएगा, सिलेक्शन। यानी हमारे बॉडी के अंदर उसका कोई फंक्शन है क्या, इसके लिए वो सिलेक्शन में जाएगा। और अगर ये ऐसे ही कंटिन्यूअसली सरवाइव करते गया तो डेफिनेटली किसी ना किसी मेटाबॉलिक पाथवे में क्या हो जाएगा, वो एक्ट करना शुरू कर देगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो F1 से F2 में जाएगा, F2 से F3 जनरेशन होगा, F4 जनरेशन होगा, यू विल फाइंड कि आपके बॉडी के अंदर एक नया प्रोटीन फैमिली डेवलप हुआ। प्रोटीन फैमिली डेवलप हुआ कि सब फैमिली डेवलप हुआ, सॉरी, सुपर फैमिली डेवलप हुआ या सब फैमिली डेवलप हुआ? कौन सा फैमिली डेवलप हुआ? सब फैमिली। सब फैमिली। सब फैमिली, बराबर है, क्योंकि वो डिस्टेंटली रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, वो उसी के अंदर का एक फैमिली मेंबर बन गया, पर रिलेटेड है, कुछ तो भी चेंजेस हो गए। और आपको दिखेगा कि कई सालों बाद, कई जनरेशन बाद आपको एक वेरिएंट प्रोटीन दिखेगा, है ना। वेरिएंट प्रोटीन कैसा रहेगा, 1 2 3 4 वर्सेस 1 2 1 2 7 7 8 8 3 4, समझा। इस तरह से उसके अंदर चेंजेस आएंगे। तो एक्चुअली क्या हो गया, यहाँ पे यू विल सी द एडिशन इन, क्या हो गया, एडिशन इन, पैटर्न। एडिशन इन पैटर्न। सेम इसी तरह उल्टा भी हो सकता है। आपके पास एक सेल है, ठीक है, उसके अंदर 1 2 3 4 नाम का एक जीन है, ठीक है, और ये जीन रेप्लिकेशन में गया, किस में गया, रेप्लिकेशन समझता है ना, जीनोम का रेप्लिकेशन होता है। तो जब जीनोम का रेप्लिकेशन होता है तो एक से कितनी कॉपी बनती है, 2 कॉपीज बनती है, बराबर है ना। एक से कितनी कॉपीज, 2 कॉपीज। तो जब रेप्लिकेशन होते जा रहा है, मान के चलते हैं ये सिचुएशन है ऐसी, रेप्लिकेशन हो रहा है तो एग्जैक्ट डुप्लीकेशन होता है, राइट, है ना, एग्जैक्ट क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है। और जब डुप्लीकेशन हो रहा है तो मान के चलते कि जब वो डुप्लीकेशन हो रहा है तो एक जीन का डुप्लीकेशन होने की प्रोसेस चल रही है, और तभी समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग। जैसे ही समथिंग वेंट रॉन्ग, वो जीन का वन पार्ट गेट्स लॉस्ट, ठीक है, एक पार्ट उसका लॉस्ट हो जाता है। रिजल्टेंट मान के चलते कि जो 1 2 3 4 कोड करने वाला था वो अब हो गया है 1 2 3, ठीक है। तो ये 4 पार्ट में से अब सिर्फ 3 पार्ट ही रह गए उसके अंदर, ठीक है। तो जब वो रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और जब फिर से ये जीन एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, तो आपको क्या लगता है क्या होगा, क्या होना चाहिए? Sir, it does not express, but it will perform its function. एक्सप्रेस तो होगा तभी फंक्शन कर पाएगा ना, एक तो एक्सप्रेस नहीं होगा बिल्कुल भी, यानी वो टोटली क्या हो जाएगा, डैमेज। और वो एक्सप्रेस कब नहीं हो पाएगा, जब उसके रेगुलेटरी रीजन अगर डैमेज हो गए, रेगुलेटरी रीजन अगर डैमेज हो गया जहां से वो एक्सप्रेशन के लिए रेगुलेट करता है खुद को, यानी जीन स्टार्टिंग से, तो फिर वो बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो तब टर्न ऑफ हो जाएगा। पर अगर उसका एंड पार्ट हट गया है तो एक फंक्शन उसका कम हो गया, समझ रहे। तो मान के चलते 1 2 3 और 4 पार्ट है। पहला जो पार्ट है वो सबस्ट्रेट बाइंडिंग के लिए है, मान के चलते। दूसरा जो पार्ट है वो एंजाइम एक्टिविटी के लिए है। तीसरा जो है वो कोफैक्टर बाइंडिंग के लिए है, ठीक है। और फोर्थ जो है वो इनहिबिटर बाइंडिंग के लिए।
ठीक है, समझ रहे? तो पहला कौन है? सबस्ट्रेट बाइंडिंग के लिए, दूसरा एंजाइम एक्टिविटी के लिए, तीसरा कोफैक्टर और चौथा इनहिबिटर बाइंडिंग के लिए। सो अब जो म्यूटेट हुआ है उसके अंदर कौन सा फंक्शन नहीं है? इनहिबिटर बाइंडिंग। सही, इनहिबिटर बाइंडिंग एबिलिटी खत्म हो गई। इसका मतलब ये हो जाएगा इनहिबिटर बाइंड होने के बाद, यानी एक आपके पास ऐसा प्रोटीन रहेगा 1 2 3 4 वाला, और उसके साथ में इनहिबिटर आ गया, तो ये प्रोटीन का फंक्शन क्या हो जाएगा? स्टॉप। पर अब आपके बॉडी ने एक ऐसा प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया है जो इनहिबिटर के प्रेजेंस में, इनहिबिटर के प्रेजेंस में स्टॉप होगा क्या? नो सर। नो, वो स्टॉप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो साइट ही नहीं है, वो जगह ही नहीं है प्रोटीन के ऊपर बाइंड करने के लिए। समझ रहे? तो ये कौन हो गया? क्या बन गया? न्यू वेरिएंट, न्यू वेरिएंट। और ये कौन है? सुपर फैमिली या सब फैमिली? सुपर फैमिली। सुपर फैमिली। नहीं, सुपर फैमिली कैसे हो गई? सर सब फैमिली होंगी। सभी है ना, उसी का पार्ट है ना। समझ रहा है क्या? ये सब फैमिली ही है। पॉइंट समझ रहा है? क्योंकि उसी प्रोटीन से बना हुआ प्रोटीन है वो। पॉइंट समझ रहा है? बट सर फंक्शनिंग मतलब वो इनहिबिटर को स्टॉप कर रहा है ना, फंक्शन स्टॉप नहीं कर रहा है। देखो इन्होंने क्या बोला यहाँ पे, प्रोटीन के फैमिली किसके बेसिस पे होती है? समझ रहे? सिमिलैरिटीज इन सीक्वेंस और स्ट्रक्चर सीक्वेंस और एंड स्ट्रक्चर। रिलेटेड फंक्शंस। तो ये हमारा प्रोटीन रिलेटेड फंक्शन कर रहा है ना। देखो सबस्ट्रेट बाइंडिंग वही है, वो फैक्टर बाइंडिंग भी वही है ना, एंजाइम हाँ एक्टिविटी भी सर। वही है, सिर्फ क्या नहीं बचा? इनहिबिटर बाइंडिंग। इनहिबिटर बाइंडिंग। इसलिए ये रिलेटेड है ना, इसलिए सब यस सर। फैमिली है, सब फैमिली। सब फैमिली है। सुपर फैमिलीज का जो चीज है, कंसेप्ट है, सुपर फैमिलीज में से हमने पढ़ा सुपर फैमिली और फिर सब फैमिली। समझ रहे? तो अल्टीमेटली सुपर फैमिली यानी कौन? सुपर फैमिली यानी जहां बहुत डिस्टेंट रिलेशनशिप वाले भी हमको मैच मिल रहा है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा ना अभी, अल्डोलेज ए का जो होमोसैपियन था, बॉस टॉरस था, काऊ था, इन सब के अंदर मैच मिला ना हमको। यस सर। हाँ, तो ये सब क्या है? सुपर फैमिली। सुपर फैमिली, यानी अल्डोलेज ए, होमोसैपियन, बॉस टॉरस, काऊ, ये सब सुपर फैमिलीज हैं, इसलिए रिलेटेड है। ठीक है, और फिर उसके अंदर में हम क्लोज अगर एनालिसिस करेंगे तो सब फैमिली। तो ये हो गई, कौन हो गई? सब फैमिली। पॉइंट समझ रहे हैं आपको सबको? तो समझ रहा है ये? और ये डाइवर्ज होते जाता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, म्यूटेशंस होते जाते हैं, सिलेक्शन में चलते जाते हैं, अगर सरवाइव करेंगे तो F1 बनेगा, F2 बनेगा, इस तरह से प्रोसेस चलते जाएगी। सो यहाँ पे एग्जांपल है, देखो, वन सेट ऑफ प्रोटीन दैट कंप्राइजेस ऑफ अ सुपर फैमिली। देखो एक सेट है पूरा प्रोटीन का जो एक सुपर फैमिली में है, जिसका नाम है आर द जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। ठीक है, ये सारे कौन है? G protein coupled receptors. These are a large and diverse group of proteins that are involved in a many biological processes, including photoreception, regulation of immune system, nervous system transmission. ठीक है, अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, but still they are at one particular super family. So at the super family level of G coupled protein receptors shares the two common properties. ठीक है, ये सारे के सारे दो कॉमन प्रॉपर्टीज शेयर कर रहे हैं। कौन सी? दे हैव 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन्स and interact with the specialized protein called G protein.
ठीक है, टू इन्फ्लुएंस इंट्रासेलुलर पाथवे, ठीक है। यानी देखो इनके नाम तो बड़े अलग अलग है, देखो सिक्रेटिन लाइक सी कैम, रोडोप्सिन लाइक मेटाट्रॉफिक ग्लूटामिन रिसेप्टर। अरे तो फिर इनको तो अलग अलग डालना चाहिए था, पर उनको सबको एक ही फैमिली में डाला गया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर दो बड़ी स्पेशल सिमिलैरिटी है। सबसे पहले क्या बोला उन्होंने, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, ठीक है। ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्पैन करने वाला प्रोटीन है, और ये सारे के सारे प्रोटीन एक स्पेशल प्रोटीन के साथ हमेशा इंटरैक्ट करते हैं जिसका नाम है जी प्रोटीन। इसलिए उसको क्या कहा, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर फैमिली या सुपर फैमिली। समझ रहे आपको, ये रिलेटेड है। सो ये हमको समझ में आ गया। अब हमको अगला जो पार्ट पढ़ना है वो है डोमेन, ठीक है। डोमेन क्या है पहले समझ लेते हैं, फिर इधर आएंगे। प्रोटीन जब हम बात कर रहे हैं तो प्रोटीन फंक्शन, राइट, प्रोटीन फंक्शन। तो प्रोटीन के अंदर अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं, दैट वी ऑल नो। कौन से टाइप के फंक्शन होते हैं प्रोटीन के, बता सकता है कोई? प्रोटीन किस तरह के फंक्शंस करता है? मैं एग्जाम्पल नहीं पूछ रहा, मैं उसके बेसिक पूछ रहा हूँ कि वो क्या क्या कर सकता है, जैसे मैंने अभी यहाँ बताए थे, ये है ना, ये एक्टिविटीज वो करता है ना। तो प्रोटीन फंक्शंस बाय डिफरेंट मीन्स। सबसे पहली जो बेसिक एक्टिविटी होती है वो होती है, अगर वो एंजाइम है तो उसके पास में सबस्ट्रेट बाइंडिंग पोजीशन होनी चाहिए। अगर वो किसी से स्टिमुलेट होता है, ठीक है, यानी जैसे एलोस्टेरिक एंजाइम, सुना होगा ना एलोस्टेरिक एंजाइम? यस सर। एलोस्टेरिक एंजाइम है ना, एलोस्टेरिक एंजाइम हो गए, ये किसी से तो भी इन्फ्लुएंस होते हैं, राइट। जब इन्फ्लुएंस होते यानी उनके साथ जब तक वो इंटरेक्शन नहीं करता तब तक वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा। फिर अगला जो होता है एंजाइमेटिक, यानी एक्टिव साइट होती है उसके अंदर, राइट, एक्टिव साइट। देन देयर इज अ इनहिबिटर रीजन, देन देयर इज अ कोफैक्टर बाइंडिंग साइट, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। फिर को एंजाइम बाइंडिंग साइट, और फिर होता है प्रोडक्ट रिलीज पॉइंट्स, ठीक है। तो एक प्रोटीन के अंदर में इतने सारे फंक्शंस होते हैं। फंक्शन जब हम बोलते हैं ना प्रोटीन फंक्शन, तो प्रोटीन फंक्शन एक्चुअली क्या है, ये सबका कॉम्बिनेशन है। अगर हम एक एंजाइम पकड़े तो वो सबस्ट्रेट को रिसीव करेगा, है ना, रिसीव करने के बाद में वो कहाँ लेके चले जाएगा, वो उसके एक्टिव साइट के पास लेके चले जाएगा। एक्टिव साइट पे जाके उस सबस्ट्रेट को तोड़ के एक नया प्रोटीन प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, और फिर उसको रिलीज कर देगा, ठीक है। रिलीज कर देगा कहाँ से, प्रोडक्ट रिलीज पॉइंट से। और ये सब होने के लिए, यानी देखिए यहाँ पे रिसीवल ऑफ सबस्ट्रेट, एक्शन ऑन अ सबस्ट्रेट, कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, एंड रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोटीन। ये तीन चीजें करने के लिए बीच बीच में और भी बहुत सारी चीजें लगती है। सबसे पहला हो सकता है कि आपका वो प्रोटीन एलोस्टेरिक एंजाइम हो, यानी वो किसी के तो भी कंट्रोल में है, ठीक है, एलोस्टेरिक इनहिबिटर के या इन्फ्लुएंसर के कांटेक्ट में है वो, ठीक है, इंड्यूसर या इनहिबिटर के, तभी वो सबस्ट्रेट को अटैच करेगा या नहीं करेगा। कोफैक्टर, कभी कभी प्रोटीन्स को कोफैक्टर्स लगते हैं या फिर कोएंजाइम्स लगते हैं, जब तक ये बाइंड नहीं करेंगे तब तक ये एक्शन नहीं होगा। अटैचमेंट, रिएक्शन एंड डिटैचमेंट, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं इनको कहा जाता है कंजर्व डोमेन्स, ठीक है। अब आप बोलोगे सर एग्जैक्टली कंजर्व डोमेन क्या होते हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज एग्जैक्टली कंजर्व डोमेन इज। आपके अमीनो एसिड्स में देयर आर फ्यू, सॉरी आपके पॉलीपेप्टाइड चेन में या पॉलीपेप्टाइड चेन में
पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होता है दैट देर आर सम अमीनो एसिड्स, ठीक है, देर आर फ्यू अमीनो एसिड्स हु आर अरेंज्ड in a such a way that once they comes in three-dimensional structure, they forms the unique workplace, okay, by the charge and environment. क्या होता है, आपका पॉलीपेप्टाइड चेन कुछ अमीनो एसिड से बना है और उसमें से कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो अब खुद को इस तरह अरेंज कर दे दैट व्हेन दे कम्स क्लोज इन अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर दे फॉर्म्स अ यूनिक वर्क प्लेस, है ना। एग्जांपल समझा तो आपको, आपके मम्मी पापा ऑफिस जाते हैं तो जहां ऑफिस में जाते हैं वहां पे अलग अलग जगह से लोग आते हैं, राइट, और वो एक यूनिक वर्क प्लेस बनाते हैं वहां पे, उसका एक अलग चार्ज होता है, उसका एक अलग एनवायरनमेंट होता है और उसी से फंक्शन किया जाता है ना। किचन में अगर हम सब्जी ही नहीं लाए, ऑयल ही नहीं देंगे, नमक गैस कुछ भी नहीं रहेगा तो वहां फंक्शन नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजों को क्या होता है हम अलग अलग जगह से लाते हैं ना, सिलेंडर को सिलेंडर की फैक्ट्री से उठा के लाते हैं, सब्जियों को सब्जी की मार्केट से लाते हैं, ग्रोसरी शॉप से ग्रोसरी लाते हैं और तब जाके वो यूनिक वर्क प्लेस बनता है। सेम ऐसा ही कंजर्व डोमेन भी है। पॉलीपेप्टाइड चेन में कंटिन्यूअस अमीनो एसिड्स हो सकते हैं या फिर डिस्टेंटली रिलेटेड या डिस्टेंटली स्पेस्ड अमीनो एसिड्स हो सकते हैं जो खुद को ऐसा अरेंज करेंगे कि एक यूनिक वर्क प्लेस बनेगा और वहां पे इस टाइप की एक्टिविटी होती है और इनको कहा जाता है कंजर्व डोमेन, ठीक है। तो किसी भी प्रोटीन में एक या एक से ज्यादा कंजर्व डोमेन होते हैं, ठीक है, और हर एक कंजर्व डोमेन का एक यूनिक फंक्शन है, ठीक है, ये हमेशा याद रखिए। प्रोटीन में एक कंजर्व डोमेन हो सकता है या एक से ज्यादा कंजर्व डोमेन हो सकते हैं और उसका हर एक का एक यूनिक फंक्शन होता है। तो नाम तो बड़ा यूनिक है उसका, दैट इज कंजर्व डोमेन, बट कंजर्व डोमेन म्यूटेट नहीं हो सकते, ऐसा सही है कि गलत है? नाम क्या है? कंजर्व डोमेन तो म्यूटेट सर हो नहीं होंगे म्यूटेड, नहीं हो सकते म्यूटेट। नहीं, ऐसा नहीं है, दे विल शो म्यूटेशंस, ठीक है। ऐसा कोई भी अमीनो एसिड किसी भी प्रोटीन में नहीं है कि वो म्यूटेट नहीं हो सकता, ठीक है। कंजर्व डोमेन में भी क्या होते हैं, म्यूटेशंस, समझा। कंजर्व डोमेन में भी म्यूटेशंस होते हैं बट बहुत सिलेक्शन में चले जाएंगे वो, ठीक है। वो प्रोटीन क्या में चला जाएगा, सिलेक्शन, यानी कौन आ जाएगा पिक्चर में, डार्विन। बट सर दे आर कंजर्व्ड, सो म्यूटेशन कैसे होगा? म्यूटेशन होते ही है, ठीक है। म्यूटेशन होने के बाद में मैंने जैसे आपको समझाया वो सिलेक्शन में जाएंगे, उसमें हर एक अमीनो एसिड का पॉसिबिलिटी है कि वो म्यूटेट होगा और उसके बावजूद भी वो सरवाइव कर सकता है, ठीक है, उसके बावजूद भी वो सरवाइव कर सकता है क्योंकि कंजर्व डोमेन में एक अमीनो एसिड नहीं है, कम से कम 150-200 अमीनो एसिड्स होते हैं और उसमें से एक दो अमीनो एसिड म्यूटेट भी हो गए तो भी वो सर्वाइवल में जाएंगे। और एक चीज याद रखिए, कंजर्व डोमेन का म्यूटेशन रेट जो होता है ना, म्यूटेशन रेट इज वेरी लो, ठीक है, बहुत लो होता है, यानी एक प्रकार से क्या रहता है, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको समझाया कि एक या
या मोर, वन और मोर कंजर्व डोमेन हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट समझा ना, कंजर्व डोमेन नाम जरूर लिखा है पर वो हमेशा म्यूटेट हो सकता है, पर जो रेट ऑफ म्यूटेशन है बहुत ही लो रहता है, और हर एक कंजर्व डोमेन का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। तो अभी जैसे हमने बताया ना, यहाँ पे हमने समझा है ना, एक्टिव साइट, एक्टिव साइट के लिए कौन रहेगा फिर एक, समझा क्या? एक्टिव साइट के लिए क्या रहेगा? कंजर्व डोमेन। हाँ, इनहिबिटर साइट, इनहिबिटर को बाइंड करने के लिए कौन रहेगा? कंजर्व डोमेन। कोफैक्टर बाइंड करने के लिए भी कंजर्व डोमेन लगेगा, प्रोडक्ट रिलीज के लिए भी कंजर्व डोमेन लगेगा। तो ऐसे कंजर्व डोमेन्स का कॉम्बिनेशन बन के आपका एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनता है, ठीक है। सो कंजर्व डोमेन का एक्चुअल आइडेंटिफायर क्या है ना, यानी हम कैसे डिटेक्ट करें कि प्रोटीन में कंजर्व डोमेन कहाँ है और कैसे होते हैं, क्यों दिखते हैं, ठीक है। ये समझने के लिए हमको उसके क्या समझने पड़ते हैं, पैटर्न। तो कंजर्व डोमेन को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास हमेशा क्या होते हैं, पैटर्न। तो ये चीजें अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं। क्या है लिखा है, देखिए यहाँ पे, डोमेन्स आर डिस्टिंक्ट फंक्शनल एंड और स्ट्रक्चरल यूनिट इन अ प्रोटीन। यूनिट यानी हर जगह नहीं रहते हो, थोड़े थोड़े दूर पे क्या है, अरेंज्ड है वो, ठीक है। स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल दोनों रहते हो। यूजुअली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर फंक्शन और इंटरेक्शन। मैंने अभी आपको समझाया फंक्शन कौन से कर रहे हैं, जैसे एक्टिव साइट के काम कर रहा है, प्रोडक्ट रिलीज के कर रहा है, और इंटरेक्शन किसके साथ कर रहा है, इनहिबिटर के साथ, कोफैक्टर के साथ, कोएंजाइम के साथ। सो दैट्स व्हाई दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल रोल ऑफ द प्रोटीन। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि प्रोटीन में फंक्शन कौन करता है, तो क्या बताएंगे? कंजर्व डोमेन। यस, कंजर्व डोमेन ही प्रोटीन में फंक्शन करता है। वेरी गुड। डोमेन्स एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। अभी आपको समझाया मैंने, है ना। ये सारे कौन है, कंजर्व डोमेन्स। वेयर सिमिलर डोमेन्स कैन बी फाउंड इन अ प्रोटीन्स विथ, ये भी इंटरेस्टिंग है, क्या बोला इन्होंने, देखो, वेयर सिमिलर डोमेन्स कैन बी फाउंड इन अ प्रोटीन्स विथ अ डिफरेंट फंक्शन। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है ये वाला, अगर आपको थोड़ा ध्यान में आया होगा तो, समझा क्या आपको ये? टायर और की क्या समझा रहे? अरे इनके साथ कॉम्बिनेशन बन के अलग फंक्शन देता है, और ये सेल और ओनर के साथ में अलग फंक्शन दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो टायर और की कंजर्व डोमेन है या नहीं है? आया ना? Yes, sir. यस सर। यस यस। Yes, sir. हाँ, बट उनके फंक्शन किसके साथ रिलेटेड है, इसलिए मैंने ये वर्ड डाला था, देखो, डिपेंडेंट ऑन अदर फैक्टर्स फॉर फंक्शन। उसने भी देखो यहाँ वही बोला है कि सिमिलर डोमेन रह सकते हैं अलग अलग प्रोटीन्स में, देखो, है ना, पर वो क्या करेंगे, सेम फंक्शन नहीं कर सकते, कभी कभी वो अलग अलग फंक्शन भी कर सकते। देखो कितना सुंदर है, ये समझना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल SRC होमोलॉग 3 यानी SH3 डोमेन, हमने पढ़ा होगा, बहुत बार नाम सुना है इसका। इट्स अ स्मॉल डोमेन ऑफ अराउंड ओनली 50 अमीनो एसिड इन्वॉल्व इन अ प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। एक प्रोटीन को दूसरे, वही SS3 डोमेन हैव अ कैरेक्टरिस्टिक 3D स्ट्रक्चर, ये उसका डोमेन है, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए इसमें चिंता मत करो। दे ऑकर इन अ डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोटीन विद द डिफरेंट फंक्शंस इंक्लूडिंग, देखो, यही डोमेन अलग अलग काम कर रहा है बोलता, देखो, पर अल्टीमेटली करता क्या है, हाँ, पर वो इंटरेक्शन अलग अलग टाइप का है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंक्लूडिंग एडाप्टर प्रोटीन्स
then phosphatidyl inositol 3 kinases function, and then phospholipases और मायोसिस ऐसे फंक्शन कर रहा है, और सबके अंदर कौन सा डोमेन है? SH3। समझ रहे? तो मुझे ये बताइए, ये SH3 डोमेन का जो फैमिली है वो सब फैमिली है या सुपर फैमिली? मजेदार है ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया है, देखो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, एक किसी भी एक प्रोटीन के पास में एक या एक से ज्यादा कंजर्व डोमेन्स होते हैं। देखिए यहाँ लिखा दिख रहा है आपको। सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन दैट कंटेन्स मल्टीपल SH3 डोमेन्स, दिख रहा है, एक है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर SH2 है, इज द साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन NCK। इसके पास एक से ज्यादा डोमेन है। NCK belongs to the adapter family and involved in a transducing signal, यानी सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा from growth factor to downstream signal recipient। तो इसका ऐसा शेप दिया हुआ दिख रहा है आपको ये। तो एक डोमेन, दो डोमेन, तीन डोमेन, चार डोमेन हो गया इसके पास। So as we have just seen with the NCK protein that can be composed of multiple domains, often the individual domains have specific functions। ठीक है, हर एक डोमेन के अंदर एक पर्टिकुलर क्या होती है? एक्टिविटी। तो ये डोमेन का कॉम्पोजिशन है, ये और ये सेम नहीं है, ये इसके अंदर ही ये पूरा है। समझ रहा है क्या आपको? मान के चलिए ये इसके अंदर ये पूरा एक्टिविटी है। तो देखो उसने क्या बोला, often the individual domain have specific functions but such as binding a particular molecule, ठीक है, or catalyzing a given reaction, and together this contributes to the overall role of the protein। दिख रहा है आपको? अब देखो ये दो डोमेन्स मिलके क्या दे रहा है? कैटालिटिक एक्टिविटी। ये डोमेन मिलके क्या दे रहा है? सब सेलुलर टारगेटिंग। और ये है आपका पीआई बाइंडिंग। यानी तीनों मिलके, इसको तीनों को मिलके अगर हम बोलेंगे तो इसको बोलते हैं सिग्नेचर। क्या बोलते हैं? सिग्नेचर। हाँ, सिग्नेचर। प्रोटीन की सिग्नेचर है वो। क्या है? प्रोटीन की सिग्नेचर। आपकी सिग्नेचर यूनिक होती है ना, उसी तरह प्रोटीन का डोमेन का कॉम्पोजिशन कैसे अरेंज किया, उसके बेसिस पे उसका फंक्शन डिटरमाइन होगा और वो उसकी सिग्नेचर होगी। पढ़ेंगे अभी आगे में उसको। So protein contains PX Fox domain that is involved in a binding of phosphorus। ये लिखा हुआ है शायद यहाँ पे PH ये वाला, और ये सारे फंक्शन दिए हुए। ओके, फैमिली एंड डोमेन बेस्ड प्रोटीन क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देखो कैसे उसको क्लासिफाई किया गया। फैमिली एंड डोमेन बेस्ड क्लासिफिकेशन आर नॉट ऑलवेज स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी ये इतना आसान कभी भी नहीं है। एंड दे समटाइम्स क्या हो जाते हैं? ओवरलैप। हम उसको फैमिली में क्लासिफाई करें या डोमेन में क्लासिफाई करें, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। सो सिंस प्रोटीन्स आर समटाइम असाइन्ड टू द फैमिलीज बाय वर्च्यू ऑफ द डोमेन्स दे कंटेन, यानी फैमिली में किसी प्रोटीन को क्लासिफाई करना है तो हमको सबसे पहले किसकी इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए कि उस प्रोटीन के अंदर कौन से टाइप के डोमेन या डोमेन्स है। देखो उसने क्या लिखा है? डोमेन या डोमेन्स। एग्जांपल उसने यहाँ पे बताया, देखिए यहाँ पे रेगुलेटरी जी प्रोटीन सिग्नलिंग डोमेन आर द प्रोटीन स्ट्रक्चरल यूनिट्स दैट आर एक्टिवेट्स जीटीपीएस। यानी जीटीपीएस एक फैमिली है। जीटीपीएस को जीटीपीएस बनाता कौन है? कौन बनाता है जीटीपीएस को? जीटीपीएस प्रोटीन सिग्नलिंग डोमेन। यस, जीटीपीएस को
GTPase एक्टिविटी देता है वो है जी प्रोटीन सिग्नलिंग डोमेन. They are found in the sequences that belongs to all RGS protein family. ठीक है, जितने भी RGS के प्रोटीन फैमिली मेंबर्स है उनके अंदर कौन मिलेगा आपको, इसलिए उसको RGS प्रोटीन फैमिली में क्लासिफाई किया. यानी फ्यूचर में कोई भी प्रोटीन के अंदर में अगर आपको जी प्रोटीन सिग्नलिंग डोमेन मिल गया तो आप उसको किस में क्लासिफाई करेंगे, RGS protein family. राइट. यानी RGS प्रोटीन फैमिली इज इक्वल्स टू जी प्रोटीन सिग्नलिंग डोमेन. समझा आपको, ऐसा. Which are multifunctional GTPase accelerating protein. यानी RGS प्रोटीन फैमिली छोटी नहीं है, वो क्या बोल रहा है, बहुत बड़ी फैमिली है. So all RGS प्रोटीन फैमिली मेंबर्स must contain what, RGS डोमेन, जो हमने अभी बोला. बट इसमें भी थोड़ा डाउट है. बट while some like RGS1 consist of little more than domain, others such as RGS3 and RGS6 contain additional domains that confer further functions such as depth domains which are involved in a membrane targeting. जैसे मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे एक्टिव साइट है तो बाइंडिंग साइट भी रहेगी, है ना, सॉरी, सबस्ट्रेट अगर रहेगा तो एक्टिव साइट भी रहेगी. देखो सबस्ट्रेट रहेगा तो क्या रहेगा, एक्टिव साइट भी रहेगी, और एक्टिव साइट के बाद में प्रोडक्ट रिलीज तो रहेगी. ये 3 पॉइंट तो रहने ही रहने, पर इसके साथ में अगर कोफैक्टर, इनहिबिटर या कोएंजाइम बाइंडिंग साइट एडिशनल है ना, इसकी जरूरत नहीं है पर ये एडिशनल है. तो देखो कभी कभी क्या बोल रहा है आपको दिखेगा, बोलता है कि जी प्रोटीन के साथ में यानी आरजीएस फैमिली के अंदर कुछ ऐसे भी प्रोटीन है जिसके पास कौन है, एडिशनल डोमेन्स है, जैसे RGS3, RGS6. अब मुझे कोई ये बताए ये RGS3 और RGS6 इस प्रोटीन के अंदर कैसे आ गया, कोई मुझे बताएगा. सारे तो प्रोटीन RGS फैमिली के हैं, फिर कुछ स्पेशलाइज कैसे हो गए, उनके पास ज्यादा कैसे आ गया, बताओ, ज्यादा कैसे आ गया. बिकॉज ऑफ म्यूटेशन. हाँ म्यूटेशन तो है पर कैसे, जीन ऐड हुआ होगा. हाँ बराबर है, बराबर, जो मैंने तभी बताया ना आपको कि उसने किसी से तो भी डीएनए रिसीव किया होगा. या कभी कभी क्या होता है ना, जीन डुप्लीकेशन होता है. जीन डुप्लीकेशन पता है क्या आपको, जब रेप्लिकेट होते जाता है ना तो जो जीन होता है, जीन जीन अपना कॉपी बनाता है, राइट, है ना, थ्रू डीएनए पॉलीमरेज अपना कॉपी बनाएगा. तो कभी कभी क्या होता है एक ही जीन आजू बाजू में कॉपी हो जाते हैं 2 बार. जेरॉक्स में नहीं होता क्या, अरे भैया एक प्रिंट निकालना, वो 2 निकाल के देता, अरे यार 2 निकाला, पगला है क्या तू, फिर हम बोलते उसको, बोलते जान ले ले ले, तो हम उसको साथ में रख लेते हैं, है ना. तो इसके साथ में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ ऐसे प्रोटीन्स, कुछ ऐसे स्पीसीज बन जाती है या स्ट्रेन बन जाती है जो अपना जीन को डुप्लीकेट कर देती है. जब जीन को डुप्लीकेट करते हैं तो वो साइड बाय साइड क्या रहेंगे, बैठे रहेंगे, पर कंट्रोल तो अलग अलग है ना. तो धीरे धीरे वो दोनों जीन्स क्या हो जाते हैं, मर्ज. तो मर्ज जब हो जाते हैं तो जो रेगुलेटरी रीजन होता है जो उसको रेगुलेट करता है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है. बचता कौन है, कंजर्व डोमेन. तो कंजर्व डोमेन एक ही रेगुलेटरी सीक्वेंस के कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं. तो इसीलिए उसने क्या बोला, देखो कभी कभी क्या हो जाता है, बोलता है आपके पास में एडिशनल डोमेन आ जाते हैं जो अलग फंक्शन देंगे, जैसे मेम्ब्रेन टारगेट. ये इतना आसान प्रोसीजर नहीं, ये इवोल्यूशन होता है, धीरे धीरे होता है. इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है. So RGS domain are also found in a protein belongs to other families. देखिए ये डोमेन इसका कोई फिक्स नहीं है. देखो RGS प्रोटीन फैमिली के साथ ही रहेगा ऐसा उसने बोला है क्या, नहीं, ये डोमेन और भी प्रोटीन फैमिली के साथ में बिलोंग कर रहा है. देखो सच एज बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर काइनेज, फिर एक्जीन्स के साथ में भी है, और सम अदर्स
of sorting next in family as shown in the figure. देखो यहाँ पे अलग अलग है, ये RGS दिख रहा है आपको, देखो ये RGS1 है, ये RGS3 है और ये RGS6 है। इसमें देखिए RGS1 फैमिली में नॉर्मल RGS है, दिख रहा है, और RGS3 में ये दो डोमेन क्या हो गए, ऐड हो गए हैं। यहाँ पे ये इसके साथ ऐड हो गया है, यहाँ RGS इनके साथ ऐड हो गया है, इस तरह से। तो देखिए डोमेन दूसरे डोमेन के साथ में मिलके क्या देता है, अलग अलग फैमिलीज और अलग अलग फंक्शन। समझ रहे हैं कि आपको पॉइंट? सीक्वेंस फीचर्स, सो वो जो डोमेन है एग्जैक्टली क्या करता है ये हमको देखना है। So the sequence features are the group of amino acids, ठीक है, that confer certain characteristics upon a protein. हर एक प्रोटीन का एक यूनिक सीक्वेंस फीचर है बोल रहा हूँ, ठीक है ना? हर एक प्रोटीन का एक यूनिक सीक्वेंस फीचर है और जो उसका ओवरऑल फंक्शन डिटरमाइन करता है। इसमें से ये आप समझ लीजिए, ठीक है? तो हर एक प्रोटीन का एक यूनिक सीक्वेंस है और उसके बेसिस पर यूनिक फंक्शन कर रहा है। और वो यूनिक सीक्वेंस क्या है एक्चुअली, यूनिक सीक्वेंस यानी क्या, तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, समझ रहे हैं ना? ये सारे पॉइंट्स, एक्टिव साइट, इनहिबिटर बाइंडिंग साइट, कोफैक्टर बाइंडिंग साइट, कोएंजाइम बाइंडिंग साइट, प्रोडक्ट रिलीज पॉइंट्स, ये सारे क्या है, यूनिक सीक्वेंसेस। अल्टीमेटली वो कंजर्व डोमेन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है, बोलता है वो एक्टिव साइट। ये अमीनो एसिड्स का वो ग्रुप है जो क्या करता है, कैटालिटिक एक्टिविटी करता है। फॉर एग्जांपल लाइपेज में फॉर्मेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एक्टिव साइट में होगा। इट हैज 2 अमीनो एसिड रेसिड्यू, ठीक है, और इसके अंदर 2 अमीनो एसिड सबसे इंपॉर्टेंट है, बोलता है हिस्टिडीन एंड ग्लाइसिन। हाँ, हिस्टिडीन एंड ग्लाइसिन। अब वो बोलोगे सर एक्टिव साइट बोल रहे हो, कंजर्व डोमेन बोल रहे हो, और आप तो बोल रहे सिर्फ 2 ही अमीनो एसिड्स इंपॉर्टेंट है ना? ऐसा क्यों? तो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। आप कोई भी व्हीकल ले लो, ट्रेन ले लो, बस ले लो, एयरलाइन ले लो, साइकिल ले लो, बाबा गाड़ी ले लो, कोई भी ले लो, सब में नीचे में कौन 2 ऐसे होते हैं जो जमीन को चिपक के चलते हैं? टायर्स। समझा ना आपको? कितना भी बड़ा स्ट्रक्चर ले लो, कितना भी छोटा स्ट्रक्चर ले लो, अल्टीमेटली 2 सबसे एक्टिव पॉइंट्स कौन से हैं? टायर। समझ रहे हैं ना आपको? तो एक्टिव साइट में भी एक्टिव साइट बनाने के लिए और एक्टिव साइट को एक्शन में लाने के लिए जो अमीनो एसिड्स लगते हैं वो है डोमेन। समझ रहे हैं क्या आपको? शेप लाने के लिए भी कुछ अमीनो एसिड्स लगेंगे और फंक्शन करने के लिए भी कुछ अमीनो एसिड्स लगेंगे। एक्टिव साइट में फंक्शन क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट को अटैच करना और उसके ऊपर रिएक्शन करना। तो सबस्ट्रेट जब आपके प्रोटीन के साथ में इंटरैक्ट करता है एक्टिव साइट के अंदर में, तो ये जो 2 अमीनो एसिड्स उसने लिख के दिया ना, हिस्टिडीन और ग्लाइसिन, ये कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं? हाइड्रोलिसिस, यानी फैट को रिसीव करेगा और उसको तोड़ने का काम वो कर रहा है ना, लाइपेज एंजाइम। तो एक्चुअली हिस्टिडीन और ग्लाइसिन करते क्या है, ये सबस्ट्रेट को एक ऐसी जगह देते हैं जहां पे वो रिएक्शन हो सके उसके साथ में, ठीक है? मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। आपको एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज ट्रांसफर करनी है और आपने एक इंसानों की रो खड़ी की हुई है और रो में डिस्टेंस है थोड़ा 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 डिस्टेंस पे, और आपको एक जगह से एक ईंट दूसरी जगह फेंकनी है, तो आप क्या करते हो? एक इंसान दूसरे इंसान की तरफ ईंट फेंक देता है, राइट? और वो हवा में उसको क्या कर लेता है, कैच कर लेता है और धीरे 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 आपको डिजायर्ड पोजीशन पर पहुंच जाती है। अगर मैं ऐसा नहीं करूं और बोलूं कि आपको एक ईंट दूसरी जगह से तीसरी जगह पहुंचानी है, तो कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना,
ईट पहुंचेगी sir. अपने अपने जगह पहुंच जाएगी क्या? वो नहीं ना, पहुंच भी जाएगी तो कौन से फॉर्म में पहुंचेगी? टूट जाएगी ना वो। तो एक्चुअली जब हम रो बना रहे हैं तो हमारा मेन एम ये नहीं है कि वो ईट वहां तक पहुंचनी चाहिए। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो हमारा मेन एम क्या है? अगर आप उस रो की वैल्यू को समझे तो आपका एम क्या है? मेन एम ये है कि जो पहले वाले इंसान ने जो एनर्जी उस मॉलिक्यूल में डाली, किसके अंदर? हम जब ईट को फेंक रहे हैं तो किसके ऊपर एनर्जी किसके अंदर चली गई? ईट के ऊपर, ब्रिक के। हाँ, ईट ब्रिक के अंदर चली गई। तो वो एनर्जी और वो मॉलिक्यूल को संभालने वाला तो चाहिए ना अगला वाला। तो वो एनर्जी ट्रांसफर का काम कौन करेगा? सेकंड वाला इंसान। जैसे ही आप उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर करोगे और अपने से उसका बॉन्ड तोड़ोगे, जैसे आपने अपने पास से ईट फेंक दी तो आपने अपना बॉन्ड तोड़ दिया ना उसके साथ में, और वो बॉन्ड के साथ में एक एनर्जी ट्रांसफर की, राइट? वो एनर्जी को रिसीव करने वाला कौन है? अगले वाला, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन। जैसे ही वो उसको रिसीव करेगा वो मॉलिक्यूल उसके हाथ में आ जाएगा, बराबर। और अच्छी कंडीशन में आएगा तो अच्छा ही बचेगा, फिर वो अपनी एनर्जी फेंकेगा अगले इसमें। तो ये करता क्या है एक्टिव साइट? ये हिस्टिडीन और ग्लाइसिन क्या करते हैं? आपके फैट को पकड़ते हैं, समझ रहे? किसको? किस हिस्टिडीन और ग्लाइसिन किसको पकड़ेंगे? किसको पकड़ेंगे? किसको पकड़ेंगे बताइए, यहाँ लिखा होगा देखो। फैट्स। फैट को पकड़ेगा, राइट? और जैसे फैट को पकड़ेगा, अब क्वेश्चन ये कि इसके पहले फैट को किसने पकड़ के रखा था? समझ रहे हैं क्या? हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल है, अभी आपके हाथ में है ना, या आपके लैपटॉप होगा आपके टेबल पे है ना, उसको छोड़ दो पर नीचे, क्या होगा? गिर जाएगा, टूट टूट जाएगा। जाएगा, टूट जाएगा। यानी उसकी जो फंक्शनैलिटी है, अभी वो आपके साथ में बॉन्ड बना के बैठा हुआ है ना, आपने उसको एक एनर्जी लगा के बैठे हुए हैं, हाँ है ना? यस सर। तो yes, वो एनर्जी ट्रांसफर जो है वो रिक्वायर्ड है उसको। वो तभी छोड़ेगा जब तक उसको अगला वाला कोई रिसीवर नहीं मिलेगा, समझा? और वो इतना स्ट्रॉन्ग रिसीवर होना चाहिए कि उसकी वो पहले वाले से एफिनिटी कम होके इससे अब्जॉर्ब करे, इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाए। है ना? सिंपल है। एक थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आंसर देता हूं। आपको एक लड़के के साथ प्यार हो गया, ठीक है? आप उसके साथ अच्छे साथ रिलेशन हो, फिर सडनली आपको उससे भी सुंदर, उससे भी रिच, उससे भी टैलेंटेड बंदा मिल गया, देन यू फील अट्रैक्शन फॉर दैट फेलो, और आपने पहले वाले को छोड़ दिया, दूसरे वाले से ज्वाइन कर लिया। कुछ इसी तरह वो भी करता है। हिस्टिडिन और ग्लाइसिन क्या करेगा? फैट को, फैट के अंदर बॉन्ड बड़े स्ट्रांग है ना, फैट के अंदर स्ट्रांग बॉन्ड होंगे कि नहीं? तो फैट की जो मोनोमर्स है उनको क्या बोलेगा? तुम मेरे पास आओ और मैं तुमको तोड़ दूंगी, ठीक है? पर तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी ना वो एक्टिव साइट में होती है। हिस्टिडीन और ग्लाइसिन उसको पकड़ेगा एक स्पॉट पे और उसको क्लीव करने की कोशिश करेगा, तोड़ेगा उसको। और तोड़ने के लिए क्या पुट करेगा? एनर्जी। तो एनर्जी देने के लिए जो एक जगह लगती है वो रहेगी हिस्टिडीन और ग्लाइसिन, ठीक है? तो ये एक्टिव साइट हो गया। फिर हो गया बाइंडिंग साइट। ये वो अमीनो एसिड्स है दैट आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन बाइंडिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स और द आयंस, यानी कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम। देखो लिखा है ना, हीमोग्लोबिन में आयरन बाइंडिंग, हिम हिम बाइंडिंग साइट, यहाँ पे बाइंड करेगा वो आपका कोफैक्टर। उसके साथ साथ में पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन साइट्स भी होती है ना? अमीनो एसिड्स में, प्रोटीन के अंदर में आपके पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस भी होते हैं, जैसे फॉस्फोराइलेशन, है ना, पाल्मोटिलाइजेशन, एसिटाइलेशन, ये सब होते हैं। तो उनके लिए भी साइट्स होती है ना? तो ये आपके इंपॉर्टेंट कंजर्व डोमेन्स है। देन रिपीट्स भी होते हैं which are typically short amino acid sequence and repeated within a protein but may confer binding or structural properties upon it. रिपीट्स का काम क्या है? कभी कभी बाइंडिंग करवाने के लिए या स्ट्रक्चरल फीचर्स के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव साइड और बाइंडिंग साइड, और ये किसके अंदर है? डोमेन,
रिपीट्स है, मैंने बोला ना डोमेन और रिपीट्स में फर्क है ना। सो जैसे आपके पास में कोई भी चीज आती है तो रैप होके आती है कोई चीजों में, है ना, और उसको एक फोल्ड दो फोल्ड रैपिंग होती है। खासकर जैसे कोई नाजुक सिरामिक की कोई आर्टिकल आ गया आपके पास, मूर्ति आ गई, तो उसको बहुत अच्छे से बबल रैप में डाल के लाते हैं, राइट। अगर मैं बबल रैप में नहीं लाऊंगा तो अंदर की मूर्ति क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो टूट जाएगी वो। तो ये रिपीट्स क्या करते हैं ना, इस डोमेन को कवर करने का काम करते हैं, इट कवर्स दैट डोमेन, रिजल्टेंट उसका एक एक्टिविटी उसको मिलता है प्रॉपरली। सो protein then can be classified according to the sequence feature they contain. For example, ferredoxin on are sulfur iron proteins, mediates the electron transfer, ठीक है, they can be divided into several groups according to the nature and the iron sulfur clusters, ठीक है, इस तरह से उसने दिया हुआ है। ये बताइए कौन है, बाइंडिंग साइट है या एक्टिव साइट है, बाइंडिंग साइट है या एक्टिव साइट है, समझ रहे हैं, ये है बाइंडिंग साइट, क्योंकि उसने बताया था ना आयरन मॉलिक्यूल्स एंड बॉन्ड बाइंडिंग होगा, ठीक है। सो ये लास्ट पॉइंट है सिग्नेचर वाला। अगर हमको किसी प्रोटीन को क्लासिफाई करना है किसके अंदर, फैमिलीज के अंदर, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको क्या करनी है, सबसे पहले उसके कंजर्व डोमेन डिटेक्ट करने हैं, ठीक है, और वो हम आराम से कर सकते हैं। और ये करने के लिए आपके पास एक मॉडल है जिसको बोलते हैं प्रोटीन सिग्नेचर मॉडल। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया प्रोटीन सिग्नेचर क्या है, समझा ना। So there are different types of signatures using different computational approaches. पर कॉमन जो होता है वो होता है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट ऑफ प्रोटीन। जनरली हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं, मैं करके दिखाऊंगा आपको। एंड when building an initial model, amino acid conservation at different position in the alignment is taken into the account. किसी भी चीज का सिग्नेचर ढूंढने के लिए क्या ढूंढते हैं, उसको अलाइन कर देते हैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में। और क्या ढूंढ रहे हैं, देखो हमने देखा था ना स्टार वाला, याद होगा सबको, कंसेंसस सीक्वेंसेस बोला था मैंने, स्टार वाला पॉइंट है दैट इज कंजर्वेशन पॉइंट्स। मैंने उसमें बताया भी था, देखो छोटे छोटे रीजन्स आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं, और फिर उसके बेसिस पे मॉडल बनाते हैं, एंड दैट सर्चेस इनटू द प्रोटीन डेटाबेस, refining the model in a distinct related sequences, and then once this model is mature, signature is ready and can be used in a protein sequence analysis. देखो यहाँ पे दिया हुआ एक एग्जांपल है, दिख रहा है ना, पहले मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट किया, फिर उस पर से हिडन मार्कआउट मॉडल बनाया, ये बिजनेस बिल्ड मॉडल है, फिर ये जो एनालिसिस है अलग अलग प्रोटीन्स के अंदर सर्च की है, ये हम करेंगे एक्चुअली, और फिर उसके बेसिस पे अल्टीमेटली आखिरी में एक सिग्नेचर मिलती है, देखो यहाँ पे लिखी हुई, इस तरह से ये आपको मिलती हैं, और रिजल्टेंट आप उसको एनालिसिस में करते हैं, ठीक है। देखिए ये बता सकते क्या है, ये कौन सा क्या है, कौन सा अलाइनमेंट है, कौन सा अलाइनमेंट, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। हाँ मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, राइट। तो देखिए मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन क्लासिफिकेशन, and they can help you to find out the residues with conserved in a distantly related species या proteins। देखिए ये distantly related proteins है, अलग अलग है, देखो यहाँ होमोसेपियन है, बोवाइन है, रैट है, चिकन है, अलग अलग है ना, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स है, फिर भी उनके सारे प्रोटीन्स को जब साथ में रखा गया तो एक चीज बड़ी कॉमन दिख रही है, कौन सी, देखो यहाँ पे एरो दिया हुआ है, सबके अंदर इस जगह क्या है, कौन सा अमीनो एसिड है, कौन सा अमीनो एसिड है, के, और यहाँ पे है आर, कॉमन है बिल्कुल, देखो ना इतना सारा वेरिएशंस है फिर भी वो कॉमन है,
फिर देखिए यहाँ पे एक छोटा सा पैच दिख रहा है आपको? तो ये कौन सी फैमिली होगी बताएंगे क्या मुझे? ये इतने लोग, अगर मैं इसको कंसिडरेशन में करता हूँ तो ये कौन सी फैमिली होगी? सब फैमिली या सुपर? अगर ये ग्रीन वाली लाइन सब सब फैमिली। सब फैमिली, करेक्ट। और देखिए यहां से यहां तक पकड़ दे तो ये वॉयलेट फिर से कौन हो जाएगा? सब फैमिली सब सब फैमिली। फैमिली। और अगर इसको पकड़ते हैं तो पूरा रेड को सुपर फैमिली करेक्ट, करेक्ट। समझ रहे आपको भी? यानी ये सारे प्रोटीन सुपर फैमिली में इस पॉइंट की वजह से रिलेट हो रहे हैं, समझ रहे हैं? ये रेड रेड लाइन के कारण, और ये उसकी क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो दिस इज व्हाट इज द मेन पॉइंट दैट वी हैव टू लर्न टुडे, और हम कल इसको और कंटिन्यू करेंगे, अब बहुत सारा पार्ट बाकी है इसमें। ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ओके, सो विल मीट टुमारो, और इसको पढ़िए थोड़ा सा। सिग्नेचर, डोमेन्स, मोटिव और एक्टिव साइट्स, ये सब वर्ड आज पढ़ के रखिए। ठीक है, चलिए, विल मीट टुमारो।